Guys, today we are going to interview an architect. ગુજરાતી સ્ટડી કરીને અહીંયા કામ was creative and curious also, and want new things to do in my life. Hey guys, today I am going to interview an architect who has done her graduation from Gujarat, and being a Gujarati lady, she has made her place where she is doing an architect and interior design by whole and soul without any support. So let's interview her and know her journey. Hey guys, so today we are going to interview Hiral Pancholi, who is an architect as well as an interior designer. So let's interview her and let's know that how she can be helpful to us, and please give us some tips so that we can also decor our home beautifully. Sure, Disha. Thank you very much for having me here. It's a gesture for me. Thank you very much, Disha. It's all my pleasure. So let's start with what amazed you or how you came into this field. Actually, at our time, we were not that person के हम अपने आप से कुछ भी नहीं सोचते थे. हम यानी बड़े जो बोले वही लाइन पे हम चले जाते थे. So हमारा time मतलब it was like 10-20 years back. Yes, 20-25 years back. So we were not that much mature कि हम आज की जनरेशन के जैसे सोच पाए या अपने डिसीजन खुद ले पाए. So we always depend on parents or any other person who are able to guide us. So you have your family business into this architect field, or you have your some siblings or your family people who are doing this kind of work. What made you that you want to do this architect work? No, my family business is not this. My both parents were tailor, and I am proud of that. Are very much cooperative, very much wide vision they have. They never pull me back कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है. Always they support me. You can do anything you want. लेकिन 10th के बाद I was inspired with my dad's friend into architectural field, and my maternal side, my uncles are engineers. So I was inspired by them also. Where did you complete your studies? I completed my study from Surat, Gujarat. So your whole engineer degree was done there? Yes, I born and brought up in Navsari, and I did my post graduation means engineering from Surat. So when you came into Mumbai and when you decided कि चलो मुझे ये अपना कंपनी खोलना है, मुझे ये जो मैंने डिग्री लिया है उसको मुझे जस्टिफिकेशन देना है. Being born and brought up in Gujarat, and when you married here, how difficult it was for you to cope up with the culture of Gujarat and the culture of Mumbai, and especially the work culture. Because गुजरात में तो हम 2 से 4 रुपए को आराम से सो जाते हैं, and मुंबई में तो 24 घंटे बस काम करना है. So how difficult it was for you, or how easy it was for you to cope up with all those things? Okay. It was not like that कि गुजरात में 2 से 4 सो जाते हैं. First of all, we are also very much hard-working people and very much creative people. I was very तो नरेंद्र मोदी है ही हमारे. very much happy with the Gujarat. So yes, actually वहाँ का culture और यहाँ का culture it's a little bit different, not a vast different, but I used to come here in Bombay from my childhood because we have a very many relatives over here. So I was known with this life and known with this culture also. So But while working, yes. did you had any barriers? No, there are no such as barrier. It was easy for me to cope up with this culture, and in Bombay I was perfectly fine. So being a Gujarati, जब हम गुजरात में बने तो हमारा एक काठियावाड़ी एक्सेंट आ जाता है. लेकिन जब आपने बॉम्बे में काम करना चालू किया तो आपके लिए एक लैंग्वेज बैरियर कभी बना? No, actually I learned everything in
Gujarati medium, but in engineering I learn English. Okay, but there are no as such barrier because I always think I never want to impress people with my language or tone. I want to impress with my design and my work. Oh, wow. So, now coming back to the work profile that you are doing, what is interior designing and how it is different from architectural designing? Okay, I'm an architect, and architect basically have to do the planning of the plot or open space. Okay, and according to that, civil contractor will do work on that and build a building like that. And in interior designing work, we have to decorate the interior part only. There is no exterior. Designing the Yes, space. only interior designing space. And in architectural, you have to take care of bylaws also, and according to the measurements and bylaws. So, as you said that कि आपको contract देना है and civil engineer आके सारे काम करेंगे. So, being a woman, how difficult it is for you to coordinate with every time coordinate करो civil workers से या civil construction से कि भाई ये बना के नहीं ये बना के नहीं, because एक male dominant Right. काम करते हैं जब लोग और उसमें Of जब course. कोई lady काम करती है तो was it easy for you? Actually, it's not easy. Depend on how you take it. So how difficult it is for you to continuously coordinate with people who are into civil work and you are into designing sitting in the office और वहाँ से कोई काम कर रहा है तो how easy it is कि हाँ चलो ये काम हुआ है कि नहीं है कि सही हुआ है गलत हुआ है लोगों से कैसे coordinate करना है. Right. Actually, it's a teamwork. So basically, we refine the people and make one team. So now it is very much easy for us to cope up with all the things because that site person or the contractor take care of this all thing, and I execute work with my designs and I look after design बराबर बना है कि नहीं, and I continuously in touch with the laborers also, and it depends on कि आपको हर एक मटेरियल का और मटेरियल का प्राइस और वो आपको नॉलेज होना चाहिए, then no one can make it through. So आपके जो clients हैं वो office clients हैं या residential clients हैं कैसे clients हैं? I have residential and commercial both work and both client we have. Residential work मुझे with the grace of God ज़्यादा मिला है commercial से ज़्यादा, so I have expertise in that. So residential work में architect का क्या होता है? Building तो पहले से बना हुआ होता है. बिल्डिंग पहले से बना होता है. आर्किटेक्चरल वर्क में कुछ नहीं होता है. इट्स इन इंटीरियर डिजाइनिंग वर्क बिकॉज आई एम आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर बोथ वर्क आई एम डूइंग. सो इन इंटीरियर डिजाइनिंग देयर आर द होल हाउस यू कैन मेक एज पर योर चॉइस एंड क्लाइंट्स टेस्ट. सो आपके अब तक के बेस्ट काम या बेस्ट क्लाइंट या आपने बेस्ट कुछ बनाया होगा वो कहाँ होगा किसका होगा? With the grace of God, I have most of my project in Thakur village only, and अभी तक यानी इतने टेस्टिमनी आते हैं, यानी my clients are always satisfied with my work. There is much more high thing about my work, and one of my client has given testimony कि सबके फैमिली डॉक्टर रहते हैं और आज हमें हमारा फैमिली आर्किटेक्ट मिल गया इंटीरियर डिजाइनर. दैट इज आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ दैट टेस्टिमनी एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर हर ऑल्सो बिकॉज शी लाइक माई वर्क एंड द वे आई डू द वर्क. थैंक यू वेरी मच. That's wonderful and congratulations for such Thank you. beautiful testimony. Thank you. Thank you. So, whenever we start any kind of work, there is a huge competition outside. Right. What are your USPs that makes you different from other architectures? I believe not to compete anyone. I always believe to compete myself only because पहले जो काम किया था और अब जो काम कर रहे हैं वो ही कितना अपग्रेड कर रहे हैं. So I never feel any low like that कि competition बहुत है तो मुझे टेंशन नहीं आता है because I don't want to compete anyone. And my main USP, yes, we have some USPs. मैं first of all
आई एम डूइंग माई वर्क विद इन माई टाइम लिमिट. इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट कि आपका जो काम चलता है ना, तो वो आर्किटेक्ट को उसको घर से धक्का मार के निकालना पड़ता है. तो माइंड वॉज नॉट लाइक दैट. ऑलवेज गेव माई वर्क हैंड ओवर माई वर्क बिफोर टाइम. सो आप पहले बता रही हो कि आप 3 महीना 4 महीना है और आप Yes. ऑन टाइम काम खत्म कर देते हो. अप्रॉक्स टाइम दे देते हैं तो ऑन एंड अराउंड उसके आसपास ही खत्म हो जाता है मेरा. तो जब आप काम लेते हो राइट. आप एक फिक्स अमाउंट पहले से डिस्कस हो जाता है जनरली जब भी हम आर्किटेक्ट या इंटीरियर को करते हैं. बट कई बार होता है बहुत सारे इंटीरियर्स कुछ ज़्यादा महंगा हो जाता है. कभी कभी कुछ टाइल्स या कुछ सनमाइका कुछ ज़्यादा महंगा आ जाता है. राइट. तो पूरा बजट हिल जाता है. सो आप उसी बजट में अगर काम खत्म करते हो या फिर आप उनको बोलते हो कि नहीं चलो अगर आप ये करोगे तो आई विल चार्ज यू मोर. Yes, actually this is my second USP because I always stick to your budget. Okay. तो वो डिज़ाइन के हिसाब से जब बजट बढ़ रहा है तो ऑन एवरेज स्टेज आई विल इन्फॉर्म यू कि आप ये इस्तेमाल करोगे तो आपका बजट इतना परसेंट बढ़ जाएगा. तो आई वॉज नॉट सपोज टू लाइक कि हाँ ये इतना बढ़ाना है, इतना अच्छा दिखना ही चाहिए. तो आई नेवर फोर्स्ड एनी ऑफ माई क्लाइंट टू डू सो बिकॉज एवरी वन हैव देयर budget. So and it is, I always feel their money is hard earned by them only. So it is of their pocket or my pocket. I always feel that it should not be wasted. So when you design a place or when you think of some place and you want to make it something little new, so where do you get ideas from? What makes you feel कि अच्छा चलो मुझे ये करना है ये करना है? Do you use वास्तु or do you hire other people, some designers so that आपका काम easy हो जाए या आप ही खुद सब कुछ करते हो? See, for the Vastu, I have the basic knowledge which every architect have that basic knowledge of Vastu. Okay, but for detailed work we have the person with whom we collaborate and they only look after Vastu part. So पहले आप वास्तु करते हो, जगह देखते हो, फिर आप डिजाइन बनाते हो. Right. लेकिन अगर सपोज अभी आपको किसी का डिजाइन बनाया पर उनको लगा कि ये ठीक नहीं है और आपको कुछ और करना है. Right. तो आप फिर उनको फिर से कुछ अलग से उसका चार्ज करते हो कि नहीं? आपने अगर मुझे एक बार हायर किया तो जब तक आप हाँ नहीं बोलेगे तब तक मैं 10 या 20 जितना डिजाइन बनाती रहूँगी. It was not like कि 10 or 20 design. I will give best 2 designs out of their requirement. First, actually, I do the analysis of their requirement first in deeply. I try to know their all requirement and I come to know about their taste. So according to that taste only I make the design. So always is 2 or 3 design it will be finalized. And कभी ऐसा ज़रूर नहीं पड़ा कि बहुत ज़्यादा हमें डिज़ाइन देनी पड़ती या नहीं पास हुआ या वो डिफ़िकल्टी कभी नहीं आती. वंडरफुल, दैट्स गुड. सो नॉर्मली हम जब इंटीरियर या आर्किटेक्ट के बारे में सोचते हैं हम फर्नीचर ज़्यादातर सोचते हैं या ज़्यादातर हम सोचते हैं कि ऐसे मिरर्स हो गए, ऐसे डिज़ाइन हो गए, ऐसे हो गए. तो फर्नीचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वुड, प्लाई, सनमाइका एंड एवरीथिंग. पर उसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है. 500 से लेकर 5,000 तक आते हैं. पर अगर किसी क्लाइंट का बजट कम है पर उनको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप फिर कैसे वो काम करते हैं? See, I give them estimate according to their budget, but I am damn sure about the quality of the work because around some quality of ply they have to pay for such amount which we cannot decrease it. And it is not like that कि हाँ भाई इतने कम दाम में ले लिया लेकिन हाँ हो जाएगा करके कम वाला डाल दो या ज़्यादा भाव बता के कम वाला डाल दो. तो आई डोंट डू दैट. So my work has a lot of transparency about that. So I don't teach people because I am doing my work for my passion and I don't want to do that. Any kind of negativity or cheating in my work. वंडरफुल, सच ए ग्रेट थॉट. आप इतने 20 साल से काम कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को और अपने वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो? I think it is always challenging for any woman who can be an entrepreneur or a working woman. So
इट इज़ एक्चुअली इन दैट ब्लड, आई थिंक सो, कि कोई भी वुमन या लेडी होती है वो दोनों काम इजीली मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज फैमिली इज ऑलवेज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड द वर्क इज देयर फॉर पैशन. So they have to balance it at any cost. So I think कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते हैं. तो ऐसा है कि जब जो चीज़ की जहाँ रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से चलते जा रहे हैं और दोनों का बैलेंस बना रहता है. सो आपका जब ये कोविड आया तो 2 साल तक सब कुछ शट डाउन था, राइट. सो आपका काम कितना इफेक्ट हुआ उसकी वजह से? एक्चुअली सबका काम इफेक्ट हुआ है बहुत, और जैसे सबका हुआ हमारा भी दुकान बंद हो गई थी ऑलमोस्ट. लेकिन तो फिर कोविड टाइम में मैंने वो फ्री जो टाइम था वो मेरे हॉबीज़ की तरफ और मेरे पर्सनल ग्रूमिंग की तरफ मैंने डाइवर्ट किया. और फॉर दैट पीरियड आई गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड यस आई डिड इट. सो आप जब इतने सालों से काम कर रहे हो, आपके पास अपने जो क्लाइंट्स है, आगे रिपीटेटिव क्लाइंट्स चलो अभी एक बार आपने उनका घर बना दिया तो कभी उन्होंने अगर कुछ नया कर लिया है या कुछ फंक्शन है या कुछ रेनोवेट करना है तो वो वापस आप ही के पास आ रहे हैं कि कैसा होगा? Actually, I came into village, Thakur village, from 2014. So yet not I have any repeated client, but yes, I dream to have that, because I made many residential projects and they are willing to do their office work with me only. So you have those repetitive clients. Yes. You are going to have those. They are line up with you. Yes. That's really good कि आपको पता है कि आपका काम कहाँ line up होने वाला है. Yes, because they trusted me and I have built such image because they never go anywhere. तो हाँ, अगर हमें अपना घर डेकोर करना है या हमें ऐसा कुछ करना है कि जो हम अपने घर में छोटा छोटा कुछ बना के उसे ब्यूटीफुल बना सकें, प्लीज गिव अस सम टिप्स. श्योर, डेफिनेटली. एक्चुअली देखिए, मैं इंसिस्ट करती हूँ कि आपको वास्तु करवाना चाहिए, बिकॉज वास्तु अफेक्ट एवरी पर्सन, बिकॉज सबकी कुंडली, सबके ग्रह अलग रहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट that house affect that person and the whole family also, right? तो सब दिशा सेम है, अच्छी ही है, भगवान की बनाई हुई है, लेकिन आपको कौन सी दिशा सूट होती है वो आपको वास्तु कंसल्टेंट ही बता सकते हैं. और इतने सालों का एक्सपीरियंस से यस, देयर इज सम टिप्स लाइक कि आपका मंदिर जो है वो ईशान कोण में ही होना चाहिए. ईशान कोण इज ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, राइट? ईस्ट नॉर्थ कॉर्नर जो रहता है दैट इज ईशान कोण. तो आपको वहाँ अपने भगवान की स्थापना करनी चाहिए. अग्नि कॉर्नर जो रहता है, तो अग्नि कॉर्नर में आप अपना गैस स्टोव रख सकते हैं. मेन एंट्रेंस नॉर्मली ईस्ट वेस्ट का लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इट्स ऑलवेज अफेक्ट अकॉर्डिंग टू योर होरोस्कोप. सो देयर इज नो एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन वेयर वी हैव टू टेक द मेन. तो आपने जैसे कहा कि हर किसी के हॉरोस्कोप के हिसाब से उसके मेन एंट्रेंस होते हैं, पर अगर घर तो बना हुआ है, मेन एंट्रेंस हम चेंज कभी कर सकते, कभी नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटीज नहीं होती कई बार, राइट? तो उसको हम किसी तरह से कुछ कर सके उसके लिए, राइट? वी हैव द वास्तु कंसल्टेंट. दे डोंट, यानी कोई भी डिमोलिशन के बगैर आपको वो टिप्स देंगे कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू दैट दे विल एडजस्ट इन योर करंट डायरेक्शन एंड करंट. सो गाइस, अगर आपको भी अपने वास्तु को चेक करवाना है एंड अकॉर्डिंगली आप अपना इंटीरियर करेंगे तो आपके घर में भी बहुत सारी खुशियाँ आएगी, ब्लेसिंग्स आएंगे एंड बहुत अच्छे से करियर. लेकिन कई बार ऐसे भी होता है ना कि जब हम इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं तो हम बच्चे के बारे में ये कौन सा स्टैंडर्ड है, इसके लिए करियर क्या अच्छा है, तो उस हिसाब से भी आप डिजाइनिंग करते हो. इन 18 years के जब तक बच्चे होते हैं तो वी हैव सच काइंड ऑफ डिजाइंस, बिकॉज आफ्टर 18 दे बिकम एडल्ट, देन दे डोंट लाइक दैट पैटर्न एंड डिजाइन. सो वी ऑलवेज प्रीफर कि 18 से नीचे के बच्चे हैं तो वो हम क्राइटेरिया पूरा ध्यान में रख के ही वो डिज़ाइन करते हैं. सो आपने जैसे कहा कि आप ऐसे 18
के भी बिलो के बच्चों के अलग डिज़ाइन होते हैं, अबाउ 18 के अडल्ट के अलग डिज़ाइन होते हैं, पेरेंट्स के अलग डिज़ाइन होते हैं। तो आपकी कोई ऐसी स्पेशल डिज़ाइनिंग टेक्निक्स है या कुछ मोनोपोली है? देयर इज नो एज सच मोनोपोली, बट आई बिलीव कि आपका हमेशा घर स्पेशियस दिखना चाहिए। आई डिज़ाइन लाइक दैट कि आपका हमेशा घर स्पेशियस और पीसफुल लगे। विथ मिनिमल फर्नीचर आई ऑलवेज प्रिफर minimum storage, so it will give you a good vibes also and peaceful life. That's true. और बहुत फर्नीचर हो जाता है तो कई बार खिचड़ी हो जाती है। वो सब सर पे आता है and you feel like a bounded from everywhere, so I always prefer a minimal furniture. और ये भी है कि जितना फर्नीचर उतनी हमें ही साफ सफाई रखनी पड़ती है। Yes, absolutely right. आपका यानी सब गार्बेज ही इकट्ठा होता है। जितना आप स्टोरेज बनाओगे आपका गार्बेज ही उतना इकट्ठा हो रहा है। तो मेक द फर्नीचर एज पर योर रिक्वायरमेंट ओनली। डोंट डंप अप ऑल द थिंग इन वन स्टोरेज प्लेस और लाइक दैट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और जितना गार्बेज वो इकट्ठा होगा तो आपका प्रोग्रेस वो अटकाता है। तो गार्बेज इज नॉट एट ऑल शुड बी एट योर प्लेस। यस, इट शुड नॉट बी एट योर प्लेस। वेरी नाइस। सो गाइस, एक पहली बार एक ऐसा आर्किटेक्ट देखा है जो खुद बोले कि फर्नीचर कम करो, कम करो। बट जो भी है हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जितना फर्नीचर कम होगा उतना हमें ही साफ सफाई कम करनी पड़ेगी। Right. एंड जितना खूबसूरत, जितना स्पेशियस हमारा घर दिखेगा उतनी पॉजिटिव वाइब्स हमें आएगी। सो इट वॉज अ वंडरफुल सेशन विथ यू धीरल, एंड थैंक यू कि आपने हमें इतने वंडरफुल टिप्स दिए। हम भी हमारे घर को थोड़ा बहुत ऐसे स्पेशियस बनाने की कोशिश करेंगे। एंड जो भी चाहे कि हमें अपने घर को अच्छे से इंटीरियर करवाना है या कुछ डिज़ाइनिंग डेकोर करवाना है, we can contact her. And thank you so much for coming. Thank you so much कि आप हमारे शो में आए और हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू। Thank you so much, Disha, for having me here. It's always pleasure to be with you, and thank you everyone. Thank you guys. Thank you.